Those who are joining can just wait for a few moments. Let the other join as well. मस्त हूँ रूपाली। काम का थोड़ा प्रेशर था काफ़ी टाइम से, तो बस उसी में उलझा हुआ था। चलो तो ऐसा करता हूँ ना, मैं स्टार्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। दोज हु हैव जॉइंड तो उनका भी थोड़ा रहेगा, क्यों उनको वेट कराएं। सी meanwhile I had stopped interacting with you guys at any of the platforms, be it Instagram or Telegram or our YouTube channel, because I was focusing only on my business. Okay, तो बात ऐसा था कि you guys know that I am engaged into many things, and this channel and the way of helping you all guys, twin flames or anybody in the spiritual journey or the relationship issues and all, is just sort of additional to what I do in my own personal life, right? So my business was really suffering because I was not giving ample time for my business, and यही आप लोगों का सेशंस करते रहो, मेडिटेशंस एंड ये सब चीज़ों की वजह से, जो एनर्जेटिकली द काइंड ऑफ एनर्जी दैट माय बिजनेस वांटेड, that I was not able to devote into. Okay, so thankfully I took a break, and I don't know, 1.5 months or around 2 months I have taken a break from all these things, and I could concentrate more on my business. Okay, and eventually there's nothing on paper that I have achieved, but on a on a note that I have been working on that project since a year long back, since 2022, so I know that things are taking shape. So on that note only, I just wanted to uh, share with you guys, or announce as a betterment for you guys as well, that if you guys are actually struggling with one of the very important aspect in your life, and that is finance, ठीक है, पैसा, abundance जिसको बोलते हैं, तो इसको बोलते तो सबको ही है. Everybody on the internet is giving speeches and writing books and telling n number of things, manifest this or do this shit and everything and you'll get. But actually, nobody will tell you the things, right, the steps or the process on how you should be doing, so that you are not wasting your time on trying out unnecessary things, and rather you actually start building yourself on the track that leads you towards abundance. Okay, because one thing I like to tell you guys, that whether you are a spiritual person or you are a non-spiritual person, you are a boy or a girl, you are a man or a woman, be it whatsoever gender, be it you settle in the USA or Canada or you are in India, it doesn't matter. One thing that affects all of our lives once we are born on earth, and that is having a stable financial income source and having a stable finance. Okay, and when I mean this finance, it doesn't mean that the only your basic needs are fulfilled. खाने को रोटी है, पहनने को कपड़ा है, रहने के लिए घर है. This will not help you in life. Okay, even if you see in terms of as a spiritual soul also, that you want to grow very spiritually and you want to evolve yourself as a soul, one thing fundamentally which will stop you, despite of having all the things and ingredients in your life, is that you are financially not sound, you are financially weak, or you have finance issues in your life, right? If you are having finance issues in your life,
maybe you can go very deep into meditation, or you understand all those angel numbers, or you activate all your chakra and everything you do. But if finance is a matter of concern in your life, then you can write this on a paper that it is impossible for you to grow spiritually. Yes, a matter of fact, you can grow spiritually in this context is that uh, you can go to the Himalayas, साधु बन जाओ, फ़कीर बन जाओ, भूल जाओ सब कुछ दुनियादारी, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर फाइनेंस का मैटर ही नहीं आता, फिर करते रहो स्पिरिचुअलिज्म जितना करना है. If you want to stay in the society, you want to stay among people, and then you want to aspire for spiritualism also, even in that context finance matters, right? मैं आज तक कभी भी बेतुकी बातें करने वाला बंदा नहीं हूँ, विदाउट लॉजिक बात करने वाला बंदा नहीं हूँ, और हवा में बात करने वाला बंदा नहीं हूँ. ठीक है, यू गाइज नो दिस फैक्ट that whenever I speak, it is always based on some facts, some research, some statistics basically. And I have analyzed this thing means a lot, like without a financial stability, without a financial abundance in your life, even if a spiritual context where when you are trying to leave aside everything and let go of everything, even in that context, when you are practicing non-detachment, when you are not attached to anybody, anything, or any place, even in that context also, financial stability matters, because that provides you the platform and the ground from where you can try and do anything, be it spiritualism, be it any of your hobbies, be it you want to travel anywhere, you want to buy anything, basically you don't need to worry about finance. In that mind frame only you can actually excel in spiritualism. Else, become a complete fakir, become a complete sadhu, become a complete beggar on the roads. In that context only finance will not matter to you. Okay, otherwise for each and every person it will matter, right? For anybody like Ambani, right? I always give this example of Ambani for every kind of example. If Ambani wants to become a spiritual person, he can become a super duper spiritual person, because finance is not a concern for him, right? Finance is already there, so he can take best of the best healing sessions, he can meet go to best of the best places where he can meditate, he can travel to best of the best spiritually very sound and active places, and learn spiritualism from those places. He can buy best of the best books in the market that is available in spiritualism, which will ensure that he does not need to worry once he is in embarking on the spiritual journey. Okay, so having said that, I have never seen the kind of spiritual people that you are following over the internet or in your livelihood these days, that they talk about this financial aspect. Okay, I too never focus too much on financial aspect on in any of my podcast or any of my discussion, because I too was working on my own abundance, on how to manifest things and how to do things, but not in a way typically the way that you guys believe, that ट्रिपल टू देख लिया तो नाचने लग गए. ओके, पैसे का बारिश हो रहा है. 555 देख लिया तो नाचने लग गए. अरे एंजल तो मेरे घर में 50 करोड़ का चेक भेज रहा है. नॉट दैट फुलिशनेस. ओके, आई हैव वॉक्ड माई डोंकी एस दीज मेनी ईयर्स. कई रातों को नहीं सोया, कई दिन भर परेशान रहा, लैपटॉप के स्क्रीन में देखता रहा. बहुत मेहनत किया है इन दीज मेनी टाइम्स. And apart from that, having this spark, or having this knowledge of trying out many things under the sun, so that I can explore this abundance factor, this financial factor. I have in this process tried so many things, okay, that I suppose there are many things yet which actually help you to become come into that financial abundance. But I suppose I have cracked around 70-80% of the secrets already. Okay, so
these many years I was only trying and experimenting many things, and eventually, it led me to this stage where, now I can at least share with you guys that, uh, I have made it to 80% approx of cracking the code. So I wanted to share these things with you guys also, but so that you guys too don't face any kind of financial issues in your life, right? If you guys are living in the metros or in a costly cities, then definitely this finance aspect will pinch you more than anybody else staying in tier 2 tier 3 cities, right? If you are staying in bigger cities, bigger towns, cities like New York, Singapore, Mumbai in India, or Delhi for that matter, I suppose Gurgaon, Bangalore, okay. So it will pinch you more, if you have this financial turbulence in your life, okay. So if you guys understand what I'm trying to tell, okay, what I'm trying to inform you regarding, and if you understand the importance of financial abundance, and you guys are not only into this what you call illogical aspects of seeing angel numbers or finding a feather on your bedroom, or seeing a fairy coming in your dream and showering gold coins, तोता परी की कहानी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है. हार्ड कोर, इफ़ यू वांट टू मेक मनी इन योर लाइफ, हार्ड कोर, इफ़ यू वांट टू have that financial abundance, or keep you and your family in the track of financial abundance, so that लाइफ में भले कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है ना, एटलीस्ट फाइनेंशियली आपको लाइफ में कभी हेडेक नहीं होगा, पेन नहीं होगा, दैट फाइनेंस इज एन इशू फॉर मी, ठीक है. So in that context, I can design a module for you guys, wherein I will design a model in a way that uh, in a 360-degree view, because what I have cracked this is that having this financial abundance and all these things is not only depends on any one aspect, okay. You should have a sound mind, you should have a sound body, you should have a sound frequency. Apart from that, it also depends on where you are staying, the kind of home, the vastu in your home, okay, how you are utilizing the vastu within your home, what kind of things you are placing at your home, and where you are placing, okay, uh, at what time you wake up, at what time you sleep, what foods you eat, how you eat. So there are many lot of things which actually puts you on that track. And if for God's sake, anybody is taught these things right at their childhood, ठीक है, बच्चा होते ही बचपन से ही उसी ट्रैक में उसको रख दिया जाए ना, then eventually that person will never have to face financial struggle, until and unless it is majorly written in their karmas, or majorly written in the under the stars, that so and so person has actually not treated money well in their past lifetime or in this past lifetime. लाइक हमारे ही यहाँ पे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जो कि फ्री के सेशंस लेने के बाद पैसा पे करने का जो टाइम आता है ना, देन दे ट्राई टू एब्सकॉन्ड, ठीक है ना, फिर फ़ोन नहीं लगता, फ़ोन ब्लॉक हो जाता है, मैसेजेस रीड नहीं करते, ठीक है, और दे जस्ट डिसअपियर व्हेन इट happens to pay money. So that kind of psychology if you have, and you think that I am practicing all other things, तो वो हेल्प नहीं करेगा, ठीक है, वो सब हेल्प नहीं करेगा. Because trying to do these things, I have experimented on putting myself on their shoes also and trying to do this thing. Let me make you clear, ठीक है, ये चीज़ एक्चुअल में डेटर करता है या नहीं एनर्जेटिकली, टू चेक दिस थिंग्स. आई हैव माई सेल्फ ट्राइड टू डू समथिंग विच आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइज, कि ऐसा कुछ गलत करके भी देखता हूँ कि ये करने से एनर्जेटिकली क्या असर पड़ता है, क्या मेरा ग्रोथ ट्रैक थोड़ा सा रुकता है, क्या डाइवर्ट होता है. येस, इट हैपन्स. आई हैव ट्राइड एंड टेस्टेड ऑन माई सेल्फ, ओके, होता है. और एक बार नहीं, 2-3 बार अलग अलग टाइम फ्रेम में मैंने करके देखा कि करके देखता हूँ, ठीक है. सो मनी साइकोलॉजी इज समथिंग which either accidentally you are born in a family where things
are done and followed in a way so that uh, without knowing anything, it is in the heritage that your family lineage is following that pattern, फिर तो ठीक है, आपका घर में पहले से ऐसे परंपरा चलता आ रहा है कि उसी तरीके से हो रहा है एंड आपको बाय डिफ़ॉल्ट उसका बाय प्रोडक्ट उसका बेनिफिट मिल रहा है. If not, then you guys will have to work, okay, in and out, change entire system, including your internal frequency, the way you think, the way you behave, the way you utilize money, the way you spend money, so that you before if you enjoy your full lifetime, before your death, you see the abundance in your family, and the next generation in your family don't have to worry about finance. Okay, so for that I can help you guys with these many things. जब से ये चीज़ proven हो गया, and yesterday at 11:11 in the morning I posted a post also that I have worked for so many years, these many weeks, these many days, and then I have cracked this thing of financial abundance. Okay, so I see myself in 2024 in a completely different note compared to all the lives that I have lived. It's not that I have not earned good money in the past, or it's not that I have not lived a good lifestyle in the past. बट पता है पैसे का बात क्या है कि पैसा खर्च करने में कब मज़ा आता है पता है. लाइक आई टेल यू एन एग्जाम्पल, if I can buy a Lamborghini right now, then I'm not a rich person. Okay, I'm just giving you an example. If I can buy a Lamborghini right now, I'm not a rich person. That doesn't make you a rich person. But if I can keep on buying as many Lamborghini or Rolls Royce or something like that again and again, without having to think that I'm not having money to spend in future, only in that context I am rich actually. Okay, which means that anywhere, any moment, on anything, if you are spending and if you are able to spend on the same thing more than twice, okay, once in a year you are taking a flight from here to New York and you are saying I am rich, you are booking a Europe tour and saying rich, that's not a big deal. Once you are going to Europe tour and you are coming back and you think oh यार अब मज़ा नहीं आया, फिर एक बार जाते हैं, मन नहीं भरा, ओके, अगेन यू आर बुकिंग द यूरोप टूर नेक्स्ट मंथ, फिर आया नहीं यार स्विट्ज़रलैंड में थोड़ा सा 50 दिन और रह लेते, अब मज़ा आता. इफ़ यू कैन अफोर्ड एनीथिंग अगेन एंड अगेन इन योर लाइफ, ठीक है, only then you can consider yourself as a rich category. Now put this into context and put this into example in your own life and try to compare. If you're eating out in a restaurant, एक बार खाते हैं, अगली बार जाने का हिम्मत नहीं होता, यार खा लिया यार, बहुत खर्चा कर लिया, अब अगली बार नहीं करते, ठीक है. That is not what richness is, that is not what abundance is, that is not what your financial stability is. Why? Because you are able to spend only once and you are afraid that if I spend it twice, even if you want it, even if you want to have the food over there, even if you want to enjoy the ambience over there, then you are afraid to go there again and again. Why? Because you are worrying कि कल का क्या होगा, फिर पैसा बचाना होगा. In that context, you have not achieved abundance at all. Okay, it can be for anything, smallest of the smallest thing or costliest of the costliest thing. If you are able to purchase it more than twice, okay, एक बार खरीद लिया, दो बार, तीन बार, and so on, as long as you want it, ठीक है, then only you can consider yourself that you can actually afford that thing. नहीं तो आज के डेट में एप्पल का आईफोन खरीदना, ठीक है, कोई भी चीज़, एक 4 व्हीलर खरीदना किसी के लिए भी कोई बड़ी बात नहीं रहा. एनीबडी कैन अफोर्ड एट द मोमेंट, ठीक है, बैंक से लोन ले लो, किस्तें भरते रहो, EMI भरते रहो, सब कुछ आ जाता है आपके घर में, राइट. इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल. But if you are able to afford it again and again, only then you can consider. So that kind of financial richness, ठीक है ना, एक होता है पैसा कमाना, ठीक है ना, सब कोई कमाता है, भिखारी भी कमाता है, सब कोई कमाता है. दूसरा होता है अंधा पैसा कमाना, ठीक है ना, जहाँ पे कि पैसा आपके घर में आ रहा है. अब वो अंधा पैसा में क्या होता है ना, वहाँ पे थोड़ा योर लक मैटर्स, ठीक है, योर पास्ट कर्माज मैटर्स. लाइक किसी के लिए रोज़ का 1000 रुपये अंधा पैसा हो सकता है, किसी के लिए रोज़ का 1 लाख रुपये अंधा पैसा हो सकता है, किसी के लिए दिन का 100 करोड़ भी अंधा पैसा नहीं हो सकता. बोलेगा यार 10,000 करोड़ का नुकसान पड़ा हुआ है और तुम 100 करोड़ घर में आ रहा है, क्या उससे होगा, ठीक है. सो इट डिपेंड्स ऑन योर स्केल. ओके,
But depending on your scale and your karma, if you want the free flow of money and the financial abundance, I can help you guys. But with my past experience and everything which I have seen, I've seen that most of the guys don't deserve such free knowledge at all. Okay. To guys where I've given free sessions, those guys who were not able to pay for their sessions, I have said, okay, pay partially or whenever you like, pay in monthly EMIs. Even they try to abscond, they even try to delay the payment on time. बैंक से आप अगर EMI लेते हो तो हर महीना जो आपका डेट है उस डेट में देना पड़ता है. घर में अगर आप रेंट पे रहते हो, जिस डेट पे आपको रेंट पे करना है आपको पे करना है, ठीक है. बट सेशन के मामले में पता नहीं ये काम चोरी और ये चोरी वाला माइंडसेट क्यों आ जाता है और इतने बहाने क्यों आ जाता है कि नहीं मैं पे कर नहीं पा रहा हूँ. भाई इस तरीके से तो दुनिया नहीं चलता ना. इफ़ यू हैव वर्कड फॉर 30 days एट योर ऑफिस एंड योर ऑफिस आई एम नॉट एबल टू पे यू सैलरी एट द 30th, how, what kind of image will you have of that office? Okay, what kind of image will you have of anyone for that matter? So I have lost all the credibility that you guys had in my eyes, that you guys are spiritual or pure souls, or I have lost all that credibility. Now I don't consider you guys as pure souls or धार्मिक और सब के सब जो है ना अपॉर्चुनिस्ट हैं, सब के सब मौका परस्त हैं, मौका मिलने पे अपना औकात दिखा देते हैं. ओके, बट इनहेरेंटली वॉट एवर आई हैव एक्सप्लोर्ड, आई वॉन्ट टू स्टिल शेयर विथ यू गाइज. आप लोगों को शेयर नहीं किए बिना भी मेरा कुछ नहीं जाता. आई कैन शेयर विथ यू गाइज, बट प्रोवाइडेड somebody is really interested to learn from me, who believes that who actually know that what Vijay sir is made of, what what metal he carries. So if you guys trust and believe me, then do let me know. I'll start working on the module. Okay, and I'll schedule a series of classes only for selected for those guys. That knowledge will never be published on internet or YouTube. वो फ्री का लंच नहीं यार, वो लंगर लगाना अब मैं बंद कर दिया हूँ, ठीक है ना. और फ्री का वो लंगर लगा के पत्ते में जो है ना वो खाना परोसना अब मैं बंद कर दिया हूँ, ठीक है. मेरे को खुद इतना मेहनत लगा है, और आप लोगों को अगर रेस्पेक्ट होता, कदर होता है ऐसा नॉलेज का, तो शायद मैं करता भी. मेरे को खुद पर आप लोगों की जो क्या मैं बोलता हूँ, एक खुददारी पे ही मेरे को डाउट हो गया है, ठीक है. आप लोगों का जो ईमानदारी वाला जो एस्पेक्ट होता है ना, दैट सेशन कर लिया, और कौन सा लाखों रुपए का सेशन होता है यार, दिस ओनली few thousand rupees. उसमें भी आप लोग चोरी चमारी, नहीं आज नहीं देना है, कल देना है, परसों देना है, ये देना है, वो देना है, फॉलोअप करते रहो. मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या? राइट. योर वॉइस इज चेंजिंग इन बिटवीन. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट योर वॉइस इज चेंजिंग बिटवीन. So if you guys are actually done with trying out financial abundance in your life, and you have not got, and you do have desires in your life to have at least stable financial income, okay, then in that case you guys do let me know. I'll put this video over the internet also and in Instagram also. Whosoever, whenever they seriously want to learn from me, I'll enroll you guys, schedule series of classes and design a module accordingly, ठीक है, step by step, so that you can learn and make those changes within yourself, in your lifestyle, in your family, in your household, in your mindset, in your emotions, in everything, your daily life routine, so that लाइफ में बाकी प्रॉब्लम्स अगर है, ठीक है, तो उसके लिए तो आपको बर्थ एनर्जी एनालिसिस से आपको रास्ता मिलेगा, राइट. बट अगर आपको स्पेशली पैसों के लिए, फाइनेंस के लिए अगर आपको टेंशन है लाइफ में, ठीक है, तो ऑन दैट कॉन्टेक्स्ट दिस मॉड्यूल विल बी डिज़ाइंड. इसका कोई नाम भी अभी तक मैंने नहीं सोचा है, व्हाट आई विल कीप द नेम फॉर दिस. कितने क्लासेस होंगे इसके, दैट ऑल्सो आई हैव नॉट डिसाइडेड. कितना फीस रखूँगा, दैट ऑल्सो आई हैव नॉट डिसाइडेड. ओके, I just want to see that if you guys are actually interested to change your life in terms of finance, or you guys are okay with struggling with the financial thing, and I have no issue with that. I have no interest to teach you guys also.
और फिर ऐसा भी हो सकता है कि नहीं, आप लोग बोले क्या फाइनेंशियल एबंडेंस का बात करता है यार, मेरे बाप के पास तो इतना पैसा पहले से पड़ा हुआ है, या मेरे हस्बैंड के पास इतना पड़ा हुआ है, मैं आपको डोनेट कर देता हूँ, ठीक है, मेरे को नहीं सीखना है। तो ऐसे लोग एटलीस्ट मेरे को आके फिर बताए कि क्या है आपका जो है ना फाइनेंशियल अबंडेंस का कोई मैटर, या आप कोई कोर्स मेरे को देना चाहते हो तो मैं बोलो, मैं इनरोल हो जाता हूँ आपके उसमें, ठीक है। बट तो एनीवे, बिकॉज आई हैव सीन इन माई लाइफ, ठीक है, इंसानों से प्यार करके देख लिया, आई हैव ट्राइड टू। बट क्या होता है ना, एक इमोशनली सेंसिटिव पर्सन को अगर 2-3 इंसिडेंट्स भी ऐसा आ जाता है, एक ही इंसिडेंट्स काफ़ी होता है उसको शेक करने के लिए, और मेरे को तो सीरीज़ ऑफ इंसिडेंसेस ऐसे हुए हैं, ठीक है, उसके बावजूद मैंने स्टॉप नहीं किया, किसी न किसी तरीके से हेल्प एक्सटेंड करता रहा, पार्शियल पेमेंट में, डिस्काउंट्स में, सब तरीके से। बट नाउ I have become a stone hearted person in all these things. I don't want to, get into your problems, that why you are not able to afford the fees or why you are not able to book the session. That's your problem. You deal with it. To the max, I can only, help those guys who actually want to make a change in their life and learn from me. Okay. So that financially you attract wealth in your life. Financially, you guys don't have to worry, and it's not a magic or trick show ki you learn classes from me today and next day onwards money will start pouring into your bank account. But yes, you'll feel those changes. I feel क्योंकि मुझे तो प्रैक्टिस करने में सालों साल लग गए, मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट आई वाज एक्सपेरिमेंटिंग अगेन एंड अगेन, बट आई थिंक यू विल फील द चेंज विद इन 3 to 6 months इन योर लाइफ. 6 months आई शुड कीप इट आइडियल, 3 month बहुत जल्दी हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन आप लोग का नहीं तो शूटअप हो जाएगा, सर 3 महीने से कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है. 6 months आइडियली ऑनवर्ड्स यू विल स्टार्ट टू फील द चेंज. एंड और जो कोई काफ़ी ज़्यादा अलाइंड है, देन इट कैन बी, द टाइमलाइन कैन बी 3 month ऑल्सो. ओके, सो विद इन 3 months to 6 months टाइम विल स्टार्ट टू फील द चेंज. And depending upon how hard you are working on your financial aspect, means it doesn't mean that whatever suggestion I give you, after that you're not going on a job, you're not doing any business, you're not doing nothing, and you are just following those my guidelines. Eventually you will have to put some action onto something, so that from where money will start coming. कुछ तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है, that is for sure. And बट क्या होता है ना, प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ, लाइफ में बहुत कुछ करने के बाद भी ना बहुत सारे लोगों को रिजल्ट मिलता नहीं है, एंड दैट इज़ एक्चुअली अ फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन. करने के लिए तो बहुत कुछ, सब कुछ कर रहा है लाइफ में, ठीक है, पर सबको नहीं पता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है. वर्किंग लाइक अ डोंकी वॉन्ट मेक यू रिच इन लाइफ. लेट मी गेट दैट स्ट्रेट फॉर यू, ठीक है. गधे जैसा काम करोगे, ठीक है, सुबह 9 to 5 तो कोई जॉब होता है नहीं, 9 to 7-8 जितना घंटे आप ऑफिस में काम करोगे, बॉस के तलवे चाटोगे, उससे आप अमीर नहीं बनने वाले हो, ठीक है. हाथ में टैटू लिखवा लो, ठीक है, नाक रगड़ लो, भले आप TCS में काम करते हो, इन्फोसिस में काम करते हो, या कोई भी एसेंचर में काम करते हो, ठीक है, कुछ नहीं, घंटा रिच नहीं बनने वाले हो. यू आर ओनली ऑन दैट रैट रेस, ठीक है, और बस वही होता रहेगा. बट इफ़ यू get into that ideology of having that wealth abundance, then eventually avenues will start opening onto you, ठीक है. अपॉर्चुनिटी खुद आके आपके दरवाजे को नॉक करेगा, खुद आपको वहाँ तक ले जाके डेस्टिनी छोड़ देगा कि फ्रॉम ईयर ऑनवर्ड्स यू स्टार्ट डूइंग. नाउ फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स इट विल डिपेंड ऑल्सो अपॉन योर मैच्योरिटी, कि आप कितना मैच्योरली उस चीज़ को सोच पाते हो कि यार इतना सालों से ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास तो नहीं आया था, ठीक है, अब ये अपॉर्चुनिटी क्यों आया मेरे पास. ओके, व्हाट इज़ यूनिक इन दिस अपॉर्चुनिटी दैट आई कैन यूटिलाइज. एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड द कोड्स, ठीक है, दैट पहले तो नहीं आ रहा था, अब मैंने सर्टेन चीज़ें किया, सर्टेन चीज़ें मैंने चेंज किया अपने लाइफ रूटीन्स में एंड सर्टेन थिंग्स में, तो अब मेरे लाइफ में ऐसे आ रहे हैं, दैन डेफिनेटली दिस माइट लीड मी टू अ फाइनेंशियल अबंडेंस, एंड यू स्टार्ट पुटिंग योर एफर्ट्स ऑन टू इट, एंड ओवर द टाइम यू विल सी द रिजल्ट्स इन योर लाइफ, ठीक है. सो व्हेन द राइट टाइम कम्स एक्चुअली, ठीक है. सो ये जो लकी वाला जो वर्ड है ना, एक्चुअली जो लकी कोई होता नहीं है एक्चुअली, ठीक है. लकी वही होता है जिसने इवेंचुअली और ट्राई करता रहा, मेहनत करता रहा. मान लो कैसीनो का एग्जांपल मैं दे देता हूँ. पीपल माइट से दैट someone is a very lucky person, he goes in a casino and
he takes $1,000, he comes back with $1 lakh in his hand. तो मेरा ये कहना है ना दैट ही इज़ नॉट लकी दैट कि उसका $1,000 वहाँ पे $1 lakh हो गया. He first of all he chose not to sit at home. ठीक है, that person chose to enter the casino. Second thing, he knew among so many opportunities available in the casino which game he need to participate और कितना पैसा उसको लगाना चाहिए था उसमें. ठीक है, so depending on his actions, okay, and depending upon his years of practice of going to casino, maybe seeing other win, which games has the more winning probability, which game suits him, and things like that, eventually he chose the right game. That day was his day and he made $1,000 into $1 lakh. Okay, and we all call it, that person was so lucky. He wasn't lucky, he was trying damn hard for so many years, but one day it got clicked, and the day $1,000 becomes $1 lakh for him, from that day onwards it's no looking back for him. He can expand again and again and multiply, pyramid his wealth. Okay, so that thing. So majority of the problem, recently I was so frustrated with my work, and because my business is really frustrating business. Okay, I don't know if anybody wants to learn my business, but only if I see you guys are matured enough. I don't see that वो कैपेसिटी आप लोग के पास, वो फेफड़ा, वो दिल, वो गुर्दा, वो किडनी है ही नहीं वो इतना टेंशन और प्रेशर झेलने का. ठीक है, मैं वो भी सिखाने को तैयार हूँ. ठीक है, तो recently I was talking to someone spiritual only, and I thought that she's working in a corporate and she's a matured woman around 40 plus, and and she might understand my issues. So I was discussing indirectly, I'm having issues with my business, and I'm trying so many months, and just by a little bit I'm not able to succeed. So if you could just give me some motivation or something like that. And that person was only uttering things, you are not what you call manifesting, or what things she was telling, I don't even remember, and I was laughing here. So problem with the spiritual person is that when you are talking in context of business, when you are talking in terms of economy, when you are talking in terms of finance, even on those lines, most of this 99.99% of the so-called spiritual souls, okay, because it is really hard to differentiate between who is the actual spiritual and who is the so-called. Okay, so that's why I'm using this term. The so-called spiritual souls won't look into their logic mindset. ठीक है ना, हर चीज़ में, ठीक है ना, आपको एंजल्स मदद कर देगा, आप भगवान का नाम जपिए, आप पैसा छापने लगेंगे, आपका मैनिफेस्टेशन अभी तक पूरा नहीं हुआ है, आप मैनिफेस्ट करो. अरे भाई घंटा, ये सब ठीक है, ठीक है ना, but finance does not make account. I just take it into matter. Name any top 5 or 10 billionaires or millionaires in this world that we have seen. Dhirubhai Ambani, Gautam Adani, Tata's, Bill Gates, okay, Warren Buffett, और टेस्ला का कौन है वो, मार्क जुकरबर्ग, ठीक है ना, all these guys. Do you think these guys have this kind of shit time left कि वो बैठ के ध्यान करे, होम करे बैठ के, और बोले कि नहीं मेरे पास करोड़ों रुपए आ जाएंगे, अरबों रुपए आ जाएंगे? नो, they are working hard on their project, okay, and somewhere their karmas and their daily life routine has aligned in the fashion that they have eventually started to pyramid their wealth again and again. They are not into this trap of manifestation or what you call what other things, 369 प्रिंसिपल, कागज़ में 3 बार 6 बार 9 बार घिसते रहो, आई विल बिकम रिच, और घंटा साला 10 साल से घिस रहा हूँ, आज तक नहीं हुआ. ठीक है ना, ये सब बुलशिट भी करके देख लो. सो what I mean to say is that to become rich or to attract wealth, first and foremost thing is that you have to work hard. Okay, you have to work hard. Rather than hard, you have to work smart, and you have to start working. घर में बैठे बैठे एक जगह बैठ के मुर्गी जैसा अंडा देने के लिए बैठती है, एक कोने में बैठे बैठे, उस तरीके से तो वेल्थ आएगा नहीं. बट
Problem is that even after somebody is willing to do the hard work, no, they don't have the direction, they don't have the ambience, they don't have that energetic pull where they can capitalize on what they have earned. पैसा आता है तो खर्च हो जाता है, या पैसा आता ही नहीं, पैसा आता है तो डेट्स इतना लगा रहता है, बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से अगर आप मान लो महीने में 10,000 कमाते हो, ठीक है, और किसी तरीके से आप अगर 7,000 6,000 रुपये जमा कर सको, 4,000 ही आपका खर्चा हो, वहीं से आपका वेल्थ क्रिएशन होना स्टार्ट हो जाता है. पर ज़्यादातर लोगों का प्रॉब्लम है कि कमाई होता है 10,000 का, खर्चा करते हैं 12,000 का और बोलते हैं मैं अमीर क्यों नहीं बन रहा हूँ. ठीक है, तो खैर, तो ऐसी बहुत सारी बातें, ठीक है, बीट साइकोलॉजी ऑफ मनी, बीट ऑन द एंगल ऑफ, बिकॉज यू नो एटलीस्ट स्पिरिचुअलिटी के एंगल से भी आई विल ट्राई टू डिज़ाइन द मॉडल इन सच अ वे सो दैट हॉलिस्टिकली यू नो यू कैन ब्रिंग द फाइनेंशियल अबंडेंस इन योर लाइफ. ठीक है, तो मुझे तो यहाँ तक पहुँचने में बहुत साल लग गया, एंड आगे अब कहाँ ले जाएगा वो तो यूनिवर्स नोज. बट यू नो इट्स अ पॉइंट ऑफ थिंक दैट मेरी जगह और कोई होगा ना, तो या तो वो ये सब चीज़ें मतलब नहीं करे, इतना मेहनत लगा है ये सब चीज़ें सीखने में, क्रैक करने में, क्यों दूसरों को सिखाऊं. ठीक है ना, क्यों मैं बताऊं, उसका ज़िंदगी है वो पड़ा रहे. ठीक है, या फिर वो बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कमा लेगा ना, उसके बाद सोचेगा कि ठीक है मैंने करोड़ों अरबों छाप लिया, अब किसी को लाखों रुपए का भी थोड़ा कमाने का तरीका बताऊं तो क्या जाएगा. ठीक है ना, मेरे को तो कोई कॉम्पीट नहीं करेगा आके पीछे से. सो आई डोंट हैव दिस साइकोलॉजी एट ऑल. ठीक है, in this path of myself, you know, exploring this financial abundance, I want that the genuine followers who believe on our channel, who believe on me, and who think that they will get some value addition in their lifetime. Okay, and moreover that you guys are yourself, मान लो, tried and experimented many things in your life already. ऐसा है नहीं कि you guys were waiting for आज का दिन कि आज विजय सर लाइव आके पॉडकास्ट करेंगे, फिर उसके बाद मैं फाइनेंस के बारे में सोचूंगा. यू गाइज हैव ऑलरेडी ट्राइड हेल लॉट मैनी रेमेडीज़ और थिंग्स इन योर लाइफ, इंटरनेट से देख के यहाँ वहाँ से, फिर भी घंटा कुछ नहीं हो रहा. लक्ष्मी पूजा के ऊपर लक्ष्मी पूजा करते रहो, फिर भी कुछ नहीं हो रहा. इन दैट कॉन्टेक्स्ट it is up to you to make a choice. I won't remind again and again, or I won't force you again and again. It's up to you. अगर ऐसा लगता है then do let me know. Seriously, inbox me. Instagram में messages भेजो so that I can, you know, design the module. I can have that motivation to create the module step by step. Okay, those who have done Shiv Sadhana with us, they know that when I design the module, it is so much holistic and comprehensive. Okay, you won't get at that price that quality kind of a session anywhere else in the market. That I'm for sure. ठीक है, तो ये वाला जो होगा, जैसे मान लो कोई संदीप माहेश्वरी जैसा बंदा है या विवेक बिंद्रा जैसा बंदा है, अगर ये लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आ जाए और इस तरीके से पैकेजिंग कर सके, वो तो बड़ा बिजनेस के नाम पे स्कैम कर ही रहा है ना. ये लोग 50,000 लेते हैं कोर्स का. सोचो आप, बड़ा बिजनेस बोल के कि लोगों को अमीर बनाएंगे, एंड दैट टू हैज़ बीन प्रूवन एज अ स्कैम. अभी इंटरनेट इज़ ऑल ओवर this Vivek Vindra versus Sandeep Maheshwari thing. Okay, because eventually it was a scam which was going on since donkey years, and one person took a stand to you know, explore, to take out the truth on the daylight. तो उसकी वजह से प्रॉब्लम है. खैर, बट आई वॉन्ट प्राइस इट एट दैट रेंज कि आप लोग अफोर्ड भी नहीं कर सको. ठीक है, it will be decent enough, because and yes, one thing I'll let you know that it is complete my, you know, justification that I might ignore any of the candidate to not, you know, take a session with me for financial abundance. Okay, just because you have money doesn't mean that every one of you hearing this right now or later will be entitled to, you know, have an entry. Sir, अपने पास पैसा है ना, फेंका, चलो अपने को आने दो. No, I am very much selective. I have been selective right from the beginning. Okay, I keep my circle very small. I keep my audience very small. I am very selective on who gets to know my years of hard work of thing. And mota moti, the things that I have on my mind right now on how to design the module is that
It will be comprehensive on the aspects of your body, mind, soul, okay, your emotions, how you should tune in your emotions, your vastu within your home, how you should utilize your vastu, especially concentrated on finance, okay, how you should, place your vastu within your home so that, finance things matter. What should be your daily life routine, ठीक है, सुबह से लेके शाम तक, the time you get off from the bed till the time you get to your bed at night, what should be your daily routine so that you attract financial wealth. I will suggest maybe probably some books also if you guys are interested कि सर कोई books बता दो पढ़ने के लिए, and spiritually also the kind of things that you can do in your life routine so that eventually do, because see, these many things I have been experimenting since so many years, and you all guys know that without getting the result I never share ideas or things with anyone. So right now I am starting to see the result, okay, I am not explored completely, but I have started to see the result, and I know by the time I start to explore it fully, उसमें 2-3 साल निकल सकता है. बट अभी अगर मैं आप लोगों को कराऊँ तो हो सकता है जब मैं अपना फाइनेंशियल एबंडेंस का रास्ते में चलूँ, साथ ही साथ आप में से बहुत सारे लोग जो सीखेंगे और अपने लाइफ में चेंजेस करेंगे, you guys will also be able to solve your finance issues in your life. Okay, that is my motivation, intention. So first priority will be given obviously to those guys who have done birth energy analysis and who have taken Shiv Sadhana from us. But even if you have not done this, and if I find you genuine in case of eligible to join our this classes or not, then only that thing will be done, okay. And it will be series of class. एक दिन के क्लास में वो सिखाना संभव है नहीं, let me get this straight to you. So it can be at least 3, 4, 5 days of classes, ठीक है. It can be back to back also, it can be in breaks also, okay, then that will decide later on. But those who are interested after hearing this, and those who actually want to solve, if you are done trying a hell lot of upayas and remedies in your life, or searching, browsing the internet, ये पंडित ने ये बोल दिया, इसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, सब करके देख लिया, ठीक है ना, होता कुछ नहीं लाइफ में, तो then you can come to us. Or if you have more energy left to keep on trying more things, then all the best to you. आप लोग करते रहो, ठीक है, और कुछ अच्छा लगे तो शेयर करना आप लोग भी. तो ये बहुत एक टेडियस टास्क है, ठीक है, काफ़ी टाइम का मेहनत के बाद ये जो है ना हुआ है. एंड आप सोचो, इन माई ओन बिजनेस, एक तो बिजनेस का टेंशन, जॉब का टेंशन, लाइफ का टेंशन, ट्विन फ्लेम जर्नी का टेंशन, ठीक है, उसके ऊपर इन एंड आउट आई वाज ट्राइंग डिफरेंट रेमेडीज़ अगेन एंड अगेन, बैक टू बैक. इसका एनर्जी लेवल क्या है, अदर उपाय करता हूँ, इसका रेमेडी का एनर्जी लेवल क्या है, सो दैट फाइनेंशियल अबंडेंस में वो काम करे. एंड हो सकता है इस सेशन को वाइंड अप करने का भी टाइम आ रहा होगा, आई डोंट नो, 1 घंटे में ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है. सबसे बड़ा प्रूफ इसका पता है क्या है? आपकी हाथ के लकीर, योर फेट लाइन्स, ओके, इन योर पाम. सो इन माई फेट लाइन्स आई हैव सीन इन लास्ट कपल ऑफ वीक्स, ठीक है, I have seen the lines that was not even existing, that lines have started to build on my palm, okay. The lines that was very faded or it was not even existing, I am seeing on my own hand, it is getting deeper and it is being created, it is being generated in my fate lines. And I didn't even knew कि वो fate lines exactly mean क्या करता है. So I referred to one of the this instrument to study कि इसमें क्या है. Then I understood that this kind of lines is showing financial abundance in this lifetime, okay. So and mostly I derive my conclusion through energy readings only, be it of situation, people or anything. So I've seen that the confluence of all these things, ठीक है, वो downloads, confluence of all these things and the
kind of remedies and hard work that I've been doing in and around back to back again and again in my life is a result that it is being shown in my own hand, in my own palm, कि हाथों की लकीर भी अब शिफ्ट होने लगे हैं, चेंज होने लगे हैं. The lines that not even existed now is being built in my palm, on my palm. ठीक है. So that is the biggest proof that things are on the right direction. ठीक है. So those who are interested, inbox me in private and let me know. If I receive a good motivation, then only I'll work on the module and I'll design the classes. Then only batches will be scheduled. It will be in 2024 only. 2023 is almost gone. So in 2024 you'll get to learn this secret sort of thing, and it's not something like कि 2 मिनट का वीडियो, 5 मिनट का ये, और some chit chat sort of. It will be a complete detailed thorough. And yes, I'll add one more thing. Those who will be joining this financial abundance class with me, for them one-on-one personal session will also be scheduled, so that you guys can share your own issues related to your finance, like energy reading of your house, kind of vastu of your house. That will be included in your session, because that cannot be common na, कि your house is south facing, someone house is north facing, your bedroom is in some other corner, you are placing some items in your household at this corner, at that corner, somebody is doing else, so it depends on person to person and household to household. So that part I will be taking one-on-one only to those students who will be as a part of financial abundance classes. Okay, so लेट अस सी क्या होता है. ठीक है. मुझे तो एक जन भी आए तो सिखाने में कोई नहीं है, पर क्या होता है ना कि आज एक जन आए, 4 दिन बाद दूसरा जन आए, 5 दिन बाद चौथा जन आए, तो फिर एक ही चीज़ को रिपीट करने में कोई मज़ा नहीं है. हाँ, वन-ऑन-वन सेशंस दो. आपके घर का जो वास्तु रीडिंग है, या आपके घर में जो वास्तु रिलेटेड चीज़ें हैं, आपके पर्सनल कुछ बातें हो सकता है जो लाइफ रूटीन में जो आप कॉमनली शेयर ना करना चाहो, तो उसको तो 1-to-1 में ही लेना होगा. बट 80% ऑफ द थिंग जो एज अ ग्रुप, एज अ क्लास जिसको मैं डिप्लॉय कर सकता हूँ एज अ कॉमन, उसको आइसोलेशन में करने का कोई मतलब नहीं है. सो वील वेट फॉर द बैच फॉर्मेशन टू हैपन, एंड आफ्टर दैट we'll schedule the classes, and meanwhile I'll be working on the module only if I see a good motivation or participation from people. Okay, so दैट्स इट. या हाँ, आज मुझे यही सब बोलना था आप लोगों को. तो कुछ मैसेजेस आए आप लोगों को, मीनवाइल थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या है इसमें. आपका वॉइस बीच में बहुत भारी हो रहा है. ओके, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एज सच. आई डोंट नो अभी कैसा आ रहा है. सर, आपके एक सेशन के पैसे का तो लिपस्टिक खरीदते हैं औरतें. हाँ, आई नो यार, पीपल आर स्पेंडिंग. आई गिव दिस एग्जांपल एवरी टाइम ना. एक मूवी में जाना, पॉपकॉर्न खरीदना, और ये फिर आपका फालतू के मेकअप्स और ये सब चीज़ों में ना आप लोग स्पेंड करते हो. बट इट डिपेंड ना वेयर यू आर स्पेंडिंग योर मनी वाइजली. ओके, ऐसा नहीं कि वो चीज़ गलत है, बट आप अपने से कंपेरेटिवली अगर इफ़ यू आर मेकिंग गुड चॉइसेस, एंड दैट्स व्हाट इकोनॉमी इज़. if opportunity cost of money is where you are spending your money, sacrificing the other things where you could have spent, that is the opportunity cost of money. खैर वो इकोनॉमी का कंसेप्ट है. एनी इकोनॉमिक स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल. आप लोगों को क्यों मैं समझाऊँ. रस बराबर एक्सप्लेन किया. भारी हो रही वॉइस सर की, भारी हो रही, आई डोंट नो. I am interested, much needed. Sir, please start this financial abundance class. डिज़र्व नहीं करते सर वो लोग. हाँ, आई नो यार, दैट्स वाई आई हैव ऑल्सो चेंज माई सेल्फ. मुझे तो ये 2 साल से सुनने को मिल रहा है कि मेरा राहु चल रहा है, सो आई एम फेसिंग जॉब इश्यूज. देखो, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ. एनीबडी हु इज़ हैविंग दिस malefic planets like Rahu, Ketu or Saturn, these are the planets that actually bring wealth to you.
ठीक है, ये चीज़ आपको कोई नहीं बोलेगा. सो राहु अगर आपके लाइफ में है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, देन यू कैन यूटिलाइज दिस एनर्जी टू बिकम रिच. ओके, सो दैट्स द बेस्ट पार्ट. बट ये भी बोलने वाला कोई नहीं. शनि आ जाए लोग मरने लगते हैं. ठीक है, नंबर 8 के बॉन्ड पीपल से लोग नफरत करते हैं बिकॉज दे आर मेरे खुद के पॉडकास्ट देखो, न्यूमरोलॉजी के ऊपर 8 नंबर के ऊपर 8 नंबर के ऊपर आई हैव गिवन 3-4 सेशंस ऑलरेडी. देयर ऑल्सो आई हैव नॉट स्पोकन गुड अबाउट नंबर 8 बिकॉज दैट्स द फैक्ट ऑन हाउ इट हैपन्स. बट seeing from the finance aspect, if you see, then these are the planets: Rahu, Ketu, what you call, and this Saturn. ठीक है, to an extent moon also affect, but the way these planets will bestow you with abundance if you can utilize their energy is tremendous. Okay, so they are not malefic planets, they are not bad planets. It's the bad luck that you guys don't know how to utilize these their transits, these planet transits. और फिर बोलते हैं सर मेरा राहु चल रहा है, मेरा केतु चल रहा है, मेरा शनि चल रहा है, मैं मर गई हूँ, क्या करूँ? बिकॉज यू गाइज डोंट नो. और कोई इंटरनेट पे ये सब बात बोलता भी नहीं है. सर मैंने स्टार्टिंग से नहीं सुना, आप फीड में, हाँ फीड में मिल जाएगा आपको, आप दोबारा देख लीजिएगा. इनफैक्ट यूट्यूब में भी डाल दूंगा. फीस आई हैव नॉट डिसाइडेड रूपाली. ठीक है, फीस एंड मॉड्यूल आई हैव नॉट डिसाइडेड. एंड एक बात मैं बता देता हूँ, एनीबडी एटलीस्ट फॉर दिस सेशन, फाइनेंशियल अबंडेंस सेशन, इफ़ यू गाइज आर थिंकिंग ऑफ द फीस कि मैं फीस इतना होगा तो मैं करूँगा, ठीक है, तो वो सेशन फिर आपके लिए नहीं बना. ठीक है, बिकॉज दिस इज समथिंग where and where you will be applying in your life, the kind of abundance, the kind of track, the kind of pathway that you will get to earn money. जो पैसा ये फीस में आप लगा रहे हो ना, वो शायद आपका, क्या मैं बोलूँ, वो 1 दिन में रिकवर हो जाए. ठीक है, वो 2 दिन में रिकवर हो जाए, वो कुछ दिनों में आ जाए आपके पास. इट्स नॉट अ बिग थिंग. सो ये आपको नहीं सुन, बिकॉज वॉट आई एम टॉकिंग इज प्योरली आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल अबंडेंस. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बुलशिट की ट्विन फ्लेम आ जाएगा, ठीक है, आपको गले लगाएगा, आपको हनीमून में ले जाएगा, ठीक है ना, वो लव लेटर लिखेगा. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी सच क्रैप थिंग. आई एम टॉकिंग अबाउट प्योर फाइनेंस. ठीक है ना, पैसा आएगा, वेल्थ आएगा. ठीक है, तो उसमें फिर आपको फ़ीस नहीं सोचना. हाँ, पर इतना है कि मैं फ़ीस ऐसे डिसेंट रखूँगा कि अफोर्ड कर सके कोई. ठीक है ना, ऐसा भी नहीं होगा कि आप लोगों को लाखों रुपए खर्च करना पड़ेगा, अरे बाप रे सर ने तो मार ही डाला, ऐसा नहीं करूँगा मैं. ठीक है, यस आई एम पुटिंग एफर्ट्स फ्रॉम माई साइड बट थोड़ा कम ज़्यादा हो रहा है. सी हाई प्रीस्टेस सोल डिवाइन और ट्रू. किसी ने नहीं बोला दैट आई कैन यूटिलाइज दिस टाइम बट दे आस्क्ड व्हाई यू लेफ्ट योर प्रीवियस जॉब्स. ओके, व्हाट्स योर नेम? आई डोंट नो. ठीक है, सो आई डोंट नो सिंस व्हेन आई वाज लाइव, और 1 घंटे बाद बाय डिफ़ॉल्ट ये सेशन कट भी हो जाता है. सो सी आई विल जस्ट टेल यू, ये क्या होता है ना कि बीट शिव साधना या कुछ भी, हमारे सारे जो सेशंस होते हैं, बर्थ एनर्जी एनालिसिस, उसको आजकल मैं बियर बोलता हूँ, बर्थ एनर्जी एनालिसिस एंड रेमेडीज, बियर सेशन. तो ऑल द सेशंस आर यूनिक. ठीक है, शिव साधना करके आप लोगों को एक टाइप का बेनिफिट मिलेगा, स्पिरिचुअल कनेक्शन मिलेगा, डिवाइन हाई मिलेगा, शिव से कनेक्शन मिलेगा, आपके एनिमीज़ डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. ठीक है ना, वो है बर्थ एनर्जी एनालिसिस करके आपके लाइफ के जो पीसफुलनेस फैक्टर है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, एक स्टेबिलिटी आएगा, लाइफ एज अ मैटर ऑफ कंसर्न. आपके लाइफ में एक ठहराव आएगा, शांति आएगी, भाग दौड़ कम मचेगा. ठीक है, बट सब कुछ होने के बाद भी इफ़ यू आर इंटरेस्टेड एक्चुअली ऑन फाइनेंस, वेल्थ, अबंडेंस, देन दिस इज़ दिस चैप्टर. बिकॉज सब कुछ करने के बाद भी ना, अगर आपके लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस नहीं है, तो आप वॉट एवर यू हैव गेन्ड और वॉट एवर यू हैव लर्नड इन योर लाइफ, बी इट स्पिरिचुअल और बी इट फिजिकल हेल्थ ऑल्सो, ठीक है, यू विल नॉट बी एबल टू कैपिटलाइज ऑन इट. सो टू कैपिटलाइज ऑन योर दीज एस्पेक्ट्स, I think, and it's a fact, if you guys can challenge me then prove me wrong, कि नहीं सर पैसा मैटर नहीं करता है ना, ये बाकी चीज़ें मैटर करता है, तो ठीक है. ठीक है ना, जिस मोबाइल फ़ोन से ये बात बोल रहे हो उस मोबाइल फ़ोन को कूड़ेदाने में फेंक दो. ठीक है ना,
और जितना अपने महीने पे जितना आप खर्चा करते हो अपने आप को मेंटेन करने के लिए 5-10,000 20,000 जितना ना भी उसको भी मिनिमाइज कर दो. लिव अ सिंपल लाइफ. नो मोबाइल फ़ोन, नो सोशल मीडिया, नथिंग, नो मेकअप. ठीक है ना. नो पार्टी शार्टी, नथिंग. एंड सिर्फ आप स्पिरिचुअल बनो, पूरा साध्वी बन जाओ. तो ये भी करने का हिम्मत तो किसी में है नहीं. ठीक है. और बातें बड़े बड़े लोग बोलेंगे कि नहीं सर ऐसा है नहीं वैसा है नहीं. तो ग्राउंड रियलिटी पे आते हैं, हार्डकोर फैक्ट का बात करते हैं. हवा में बात करके कोई मतलब है नहीं कि है ना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, एंजल्स आके कुछ कर देंगे, स्पिरिट गाइड्स. हाँ, स्पिरिट गाइड्स आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, पर एक्शन तो आप ही को लेना होगा ना. आप अगर लाइफ में घर में अपना वास्तु गड़बड़ करके रखे हो, ठीक है, आप अपने डेली लाइफ रूटीन में ही गड़बड़ करके रखे हो, और ये सब करने के बाद भी मान लो आपका घर अपना खुद का साइकोलॉजी आप ख़राब करके रखो, ये कौन बताएगा आपको. सबसे बड़ा चीज़ तो ये सेशन का मेरे ख्याल से साइकोलॉजी रहेगा. ठीक है. आपका साइकोलॉजी ही अगर गड़बड़ है, ठीक है, नाम के लिए कहने के लिए आप लोग स्पिरिचुअल सोल बोलते हो. People come here and say that sir you are a brother like figure to me, you are like a friend like figure to me. एक ने गुरु बनाया, पैसा नहीं दिया, भाग गई. ठीक है. एक ने भाई बनाया, पैसा नहीं दिया, भाग गई. तो ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं. ठीक है. तो ये वाला जो साइकोलॉजी है ना, तो ये तो मैं दावे के साथ लिख के रख सकता हूँ, ये लोग भिखारी ही मरने वाले हैं पूरा ज़िंदगी भर. ठीक है. दिस काइंड ऑफ साइकोलॉजी हु विल टेल देम डैट फ्यू थाउजेंड रुपीज़ का जो सेशन है उसका फ़ीस नहीं दे के आप एब्सकॉन्ड करते हो, आप चोरी चमारी करके ऐसे भागने का पीठ दिखा के भागने का. फ़ोन ब्लॉक कर देंगे सेशन लेने के बाद. ठीक है ना. टेलीग्राम ब्लॉक कर देंगे कि कोई कॉल नहीं करेगा मेरे को, फॉलोअप नहीं करेगा. ठीक है. इंस्टाग्राम चलाना बंद कर देंगे कि इंस्टाग्राम यूज़ ही नहीं करूँगा तो सर को पता ही नहीं चलेगा, ना मैं उनका स्टोरी देखूंगा, ना कुछ जो है ना रिएक्ट करूँगा, ना मैसेजेस का रिस्पॉन्स करूँगा. ऑल काइंड ऑफ थिंग्स आई हैव सीन. ठीक है. दिस काइंड ऑफ साइकोलॉजी I can guarantee you, I can challenge best of the best astrologers or anything in this planet. These kind of psychology people will never become attract wealth or abundance. हाँ, पैसा आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है ना. abundance दूसरा फैक्टर है. ठीक है ना. वेल्थ दूसरा फैक्टर है. जेब में 1,000 रुपये 2,000 रुपये लाख रुपये 2 लाख रुपये उसको आप रिचनेस नहीं बोल सकते. ठीक है ना. वो ठीक है, आज है, कल एक छोटा सा एक फ्लूक हो जाएगा, आपको जेब खाली, फिर कुछ नहीं है आपके पास. ठीक है. अबंडेंस दूसरा बात होता है जहाँ पे लाइक इनिशियली ओनली आई एक्सप्लेन दैट इफ़ यू आर एबल टू अफोर्ड एनीथिंग मोर देन ट्वाइस देन यू कैन से दैट एक्चुअली यू कैन अफोर्ड, एंड दैट्स वेयर द कंसेप्ट ऑफ अबंडेंस स्टार्ट्स. ठीक है. तो ये लोग कभी लाइफ में ऐसे ही चिंदी चोरी करते ही मरने वाले हैं. ठीक है. So these kind of psychology where how you build your finances, what kind of emotions you keep within yourself so that और ये चीज़ देखो आप लोगों को सिखाने का मन मेरे को बहुत टाइम से था, बट क्या है ना, जब तक मैं कुछ रिजल्ट ना देखूं, जब तक मैं कुछ अपने ऊपर एनर्जेटिकली कुछ चेंजेस ना देखूं, तब तक मैं आपको कैसे सिखा सकता हूं. नहीं तो ये मैं आपको 1 साल पहले भी सिखा सकता था. It's not a big deal, but I have postponed since many years, and most of you guys have remembered that I used to say that I'll bring something on a session on abundance or something like that. And my idea was completely to make it free of cost. Okay? But meanwhile, in these many years, these many months or time frame, the kind of experience that you guys have given me, okay, in the name of spiritual soul, जो आप लोगों ने 2 कौड़ी का जो हरकत करके दिखा दिया ना, उसकी वजह से I'm not making it a free session, and I'm making it completely pure private class, ठीक है, for selected people, and that video won't even be published on the internet or anywhere. It will be complete private. ठीक है. साल में अगर कोई आएगा ऐसे बैचेस फॉर्म होगा तो 1-2 बार इसको कर देंगे, बस काम खत्म. अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता. ठीक है ना. अपना सीधा यही अब थ्योरी है. सबका भला करने के लिए जाऊंगा, लोग मेरा ही जो है ना टांग खींच के, वो क्रैब मेंटालिटी है ना, मेरे को एक हाके केकड़ा जैसा नीचे गिरा देंगे, एंड वो मेरे को नहीं करना है. ठीक है ना. आई हैव मैनी एस्पिरेशंस एंड डिज़ायर्स इन माई लाइफ विच आई नीड टू एस्पायर एंड वर्क ऑन टू. तो ये सब चीज़ों के पीछे मैं क्यों जाऊँ. एक बार सेशन लूँ और मैं 1-1 रुपये का हिसाब रखने वाला बंदा हूँ. ठीक है. तो और उसके बाद मैं 1000 बार किसी को फॉलोअप करते रहूँ, रिमाइंडर योर सेशन फीस इज़ ड्यू, रिमाइंडर. तो मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या फालतू का, मैं यही सब करता रहूँ.
ये मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। तो I'm just giving a gist of what those overall comprehensive financial abundance classes will be. But when that module will be actually scheduled and when the first batch will be rolled out, then we will get to see कि वो कितना ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बन के तैयार हुआ, ठीक है। अभी सब कुछ माइंड में है, उसको पेन एंड पेपर में एक एक थ्योरी जैसा एक क्लास फॉर्मेट में मैंने अभी तक डाला नहीं हूँ। बट दोज गाइज whoever have taken शिव साधना sessions and other similar kind of modules with us, they know that मिलेगा तो बढ़िया चीज़ें मिलेगा, ठीक है ना, एंड सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। सो वो सब चीज़ मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। प्लस जो भी बैचेस में आएंगे उनका 1-on-1 उनका लाइफ का घर का वो उसका भी एनर्जी रीडिंग एंड रेमेडीज़ एंड सॉल्यूशंस भी बताएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने घर को ही कम्प्लीटली जो है ना गलत डायरेक्शन में चला रहे होते हैं, उनको पता नहीं होता या आई डोंट नो, तो उसकी वजह से भी जो है ना गड़बड़ होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का अगर कॉन्फ्लुएंस हुआ और आपने एक्शन लिया, ठीक है, सो दिस ऑल आर मैथमेटिक्स एक्चुअली, ठीक है। एंटायर यूनिवर्स इज अ decoding of numbers and these all are mathematics, these all are logical things. So if you add it spiritually, if you add it from karma point of view, action point of view, from all the aspects if you do, then attracting abundance becomes a work of mathematics. Like if you add 2 plus 3, result will be 5, okay, definitely 2 plus 3 add करेंगे तो 4 तो नहीं होगा, ठीक है। So that kind of a कैलकुलेशन इट इज़। हाँ, ये बात है कि आपका अपना ही कर्मा ब्लॉकेजेज देता ना, अगर सुपर डुपर हाई है कि पास्ट लाइफ टाइम में यू हैव डी वैल्यूड मनी और पीपल और थिंग्स लाइक दैट, इन दैट केस ये लाइफ टाइम में आपको मुश्किल हो सकता है। बट जो भी आप अभी करोगे नेक्स्ट लाइफ टाइम में एटलीस्ट आपको प्रॉब्लम नहीं होगा फाइनेंस एस्पेक्ट को लेकर, दैट आई कैन इंश्योर, ठीक है। बट अगर ज़्यादा आपका फॉल्टी नहीं है आपका प्रीवियस कर्माज और इस लाइफ टाइम के भी कर्माज, लाइक चोरी चमारी चिंदी चोरी टाइप की जो आदतें हैं, दैन डेफिनेटली व्हेन यू टेक द क्लासेस एंड अंडरस्टैंड इट एंड इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ, दैन डेफिनेटली फाइनेंस प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व इन योर लाइफ फॉर श्योर, ठीक है। तो दैट्स इट। एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग रिलेटेड टू फाइनेंशियल अबंडेंस क्लास, और इफ़ यू वांट टू शो योर इंटरेस्ट तो यहाँ डाल के मत करो ऐसे, ठीक है ना, ड्रॉप अ प्राइवेट मैसेज इन इंस्टाग्राम एंड लेट मी नो, बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी नॉट टीचिंग यू गाइज दिस थिंग्स ऑल्सो, ओके। मेरे को कुछ पड़ी नहीं है कि आई नीड टू टीच यू गाइज दिस थिंग। मेरा क्या ऑब्लिगेशन, मैंने उधार लेके रखा है आपको कि मैं आपको सिखाऊंगा ये, ठीक है ना, आई हैव नो ऑब्लिगेशन एट ऑल। बट समवेयर क्या होता है ना कि एक आदमी के अंदर रहता है कि नहीं, इतना मुश्किल से जो है ना करके सीखा है क्रैक किया है, तो क्यों ना इससे एक दो लोग और का भी भला हो। बहुत सारे लोगों के फैमिलीज़ में प्रॉब्लम्स होते हैं फाइनेंस की वजह से, घर तबाह हो जाता है, ज़िंदगी जो है ना मुश्किल हो जाता है, और वो लोगों को पता नहीं होता, वो गलत पे गलत काम करते रहते। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। आपको इंटरनेट में एक वीडियो में या एक कोई बंदा को इतनी सारी चीज़ें बोलते हुए आपको मिलेगा ही नहीं। I'll try to list down all the things while I design the module, ताकि आप उनमें से कोई भी गलती ना करो और वो चीज़ें करना स्टार्ट करो जिसकी वजह से आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए, फाइनेंशियल अबंडेंस आपके लाइफ में आए, ठीक है। दैट इज़ माई एक्चुअली अ कॉल ऑफ अ गोल ओनली, ठीक है। वो है राइट। चलिए, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शेयर विथ यू गाइज, राइट। कुछ पूछना है देन लेट मी नो, बता दो। और जिनको अपना फाइनेंशियल स्ट्रगल्स को कंटिन्यू करना है तो वो वीडियो को स्किप कर दे, इग्नोर करे, अपना फाइनेंशियल स्ट्रगल को कंटिन्यू रखे। ऑल द बेस्ट टू यू गाइज, मज़ा लो, ठीक है ना। वो स्कैरसिटी का मज़ा लो, उसमें भी एक मज़ा आता होगा लोगों को, ठीक है ना। घर में तंगी है, पैसों का शॉर्टेज है, मज़ा आ रहा है, ठीक है। हो सकता है लोगों का नो अलग अलग नेचर के लोग होते, कई लोग को उसी में आनंद आता है, तो इट्स अ डिफरेंट मैटर, ठीक है। बट फिर ऐसे लोग स्पिरिचुअली इवॉल्व कहाँ करेंगे, ठीक है ना।
वो भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि आपका घर में खुद तंगी है और आप स्पिरिचुअली इवॉल्व करो, वो तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल मैटर हो जाता है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, लाइफ में ग्रो करने के लिए भले आपके पास कोई ना हो, ठीक है ना, बट ये चीज़ तो मैटर करता है कि एटलीस्ट कलयुग में, हाँ सतयुग में ये सब शायद मैटर नहीं करता होगा, ठीक है ना, लोग इतने दिलदार होते होंगे कि चलो आपके पास कुछ भी नहीं हो फिर भी कोई ना कोई आपको कुछ खाने पीने को देके और आपकी जो है ना लाइफ। तो अभी के टाइम में तो सर्वाइव करने के लिए फाइनेंशियल अबंडेंस इज़ अ मस्ट फॉर एवरीवन। ठीक है, चलो इफ़ यू गाइज डोंट वांट टू से एनीथिंग तो आई विल जस्ट वाइंड अप दिस पॉडकास्ट and those who are interested do let me know, only then I'll start to work on the module। नहीं तो क्या होगा, ये सब माइंड में ही क्रिएट होकर माइंड से ही चला जाएगा। एंड वंस आई स्टार्ट टू एन्जॉय द फ्रूट्स ऑफ माई अबंडेंस, फिर शायद मेरे को ये सब चीज़ करने का इंटरेस्ट भी ना आए। ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अभी क्या है ना कि अभी मैं जस्ट स्टेप इन किया हूँ उस चीज़ में, तो मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है कि मैं सिखाऊँ लोगों को। वो कीड़ा है ना अभी है, एक बार मेरा फ्लाइट टेक ऑफ कर जाए और मैं आसमान में उड़ने लगूं, ठीक है, उसके बाद मैं नीचे मुड़ के क्यों देखूंगा कि कौन नीचे रेंग रहा है, कौन प्रॉब्लम में है। फिर शायद मेरे में वो ख्वाहिश मर जाए, मेरे को लगे ये फालतू का काम है यार, अपना बिजनेस पे ध्यान दो, कॉन्सेंट्रेट करो, कौन ये सब करता रहेगा। ठीक है, मेडिटेशन कराओ तो खुद करो, दूसरों को करा के क्या फ़ायदा। ठीक है ना, वो लोग तो गधे हैं, सीखना ही नहीं चाहते, छोड़ो हटाओ। ठीक है ना, अपना बिजनेस में, क्योंकि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि मैं 1-2 मिनट भी कहीं पे लगाता हूँ ना, उतना टाइम अगर मैं अपने बिज़नेस में लगाऊं, और मैं घंटों घंटों का सेशन करता था, पॉडकास्ट करता था 4-4 घंटे का, उतना टाइम अगर मैं बिज़नेस में लगाऊं तो लाखों करोड़ों रुपए का वहाँ पे होता है। ठीक है ना, फ़र्क पड़ता है। पर उसके बावजूद मैंने आप लोगों को बहुत टाइम दिया है, बट टू माई व्हाट यू कॉल डिससेटिस्फैक्शन, आप लोग वर्थ इट मेरे को नहीं लगा कि मैं 4 घंटा आप लोगों के ऊपर स्पेंड करूं और 4 घंटा अपना बिजनेस पे काम ना करूं। ठीक है, और वही मैजिक हुआ जब मैंने लास्ट 2 महीने से आप लोगों से इंटरेक्शन करना बंद कर दिया, पोस्ट करना बंद कर दिया, यूट्यूब वीडियोस बनाना बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया और प्योरली अपने अपने काम पे फोकस रखा, बिजनेस पे फोकस रखा। तो जो चीज़ें इतना सालों से जो है ना चलता आ रहा था, वहीं पे मेरे को बहुत सारे आइडियाज़, थिंग्स एंड चीज़ें दिखाई देने लग गए जो पहले मैं शायद सामने ही था पर मैं देख नहीं पा रहा था, इग्नोर कर रहा था, या जो है ना उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा था। इट स्टार्टेड टू हैपन। ठीक है, तो यू गाइज वाज सकिंग आउट माई एनर्जी आउट ऑफ नो वेयर, और उतना करने के बाद भी क्योंकि मैं खुद ही विलिंगली आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ और आप लोग उसको ऑनर करते, ठीक है ना, रेस्पेक्ट करते और उस हिसाब से जो है ना पार्टिसिपेट करते, देन आई हैड नो इशू बिकॉज आई वॉज डूइंग इट विलिंगली। बट इतना करने के बाद भी मैंने देखा है मैक्सिमम लोग तो थैंकफुल भी नहीं है। ठीक है ना, दे डोंट इवन हैव दिस हार्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड, थैंकफुल तक नहीं है। एहसान फरामोश टाइप के ज़्यादातर लोग हैं। ठीक है, ऊपर से सेशन करते हैं तो फीस भी देने का इंटेंशंस नहीं होते हैं, चोरी चमारी करके भागते हैं। तो फिर these guys are not worth it if I take it कि if I have to spend 4 hours for my business or I have to spend 4 hours with these people, why should I spend donkey 4 hours with these people यार। गधे हैं, गधे जैसा मरे रहने दो इनको जगाने का कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा मैं बिजनेस में, एंड विद दिस माइंडसेट आई कम्प्लीटली फोकस्ड इनटू माय बिजनेस। एंड थैंकफुली मैंने गोल तो 2023 का ही रखा था कि 2023 में ही मैं अचीव कर लूँगा। थैंकफुली 2023 जाते जाते भी जो है ना थोड़ा सा मेरे को वो हो गया। आप सोचो, एक एक दिन मैं मरा हूँ अपना बिजनेस में, एक एक दिन, एवरी डे। ठीक है, इट वॉज नॉट अ ईजी जर्नी फॉर मी, बट इवन इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई हैव tried to help you guys, take out sessions for you guys, healing sessions for you guys, guidance for you guys, hear out your issues। ठीक है ना, उतना टाइम मेरे को लगता है कि यार मैं ये लोग को हेल्प करने के बजाय अपना बिजनेस पे अगर कंसंट्रेट किया होता ना, तो आज जो रिजल्ट मैं दिसंबर में देख पा रहा हूँ ना, शायद जनवरी में ही हो जाता, फेब में ही हो जाता, मेरा 2023 में ही वो चीज़ें जो है ना ऑन पेपर दिखना स्टार्ट हो जाता। ठीक है, तो खैर एनीवेज, सबका अपना अपना एक लर्निंग जर्नी है। मैंने सीख लिया और मैं अपने गलतियों को दोबारा नहीं दोहराना चाहूँगा कि आप लोगों को हेल्प के नाम पे फ्री सेशंस और डिस्काउंट्स और पार्शियल पेमेंट्स नहीं यार। आपका प्रॉब्लम है, आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो ना, आप झेलो, आपका लाइफ है, आपका प्रॉब्लम है यार। थैंक यू। ठीक है ना, मैं कोई मसीहा या खुदा का बंदा और ऐसा बनना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, वाई, बिकॉज प्राइमरली यू गाइज आर नॉट वर्थ इट एट ऑल। ठीक है,
आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसर जो चिकनी चुपड़ी बातें करके आप लोगों को ज़बरदस्ती बोले कि नहीं यू गाइज आर द बेस्ट एंड माई फॉलोअर्स आर द बेस्ट, और नहीं, वो फालतू का बात मेरे से नहीं होता, ठीक है ना। जो है सो है, हैंडफुल ऑफ पीपल है, और जो नहीं है वो नहीं है, वो ज़्यादातर तादाद के लोग हैं, ठीक है ना। तो उसकी वजह से आई एम नॉट एट ऑल इन अ स्टेट कि मैं आप लोगों को ज़बरदस्ती का अप्रिशिएशन दूं, ठीक है ना, जो कि आप डिज़र्व भी नहीं करते हो। तो ठीक है, तो जिनको फ़ायदा लेना है मैंने सारा चीज़ बता दिया। 2024 को एंजॉय करो आप लोग, ठीक है ना। थोड़ा सा कोविड का भी इश्यूज़ फिर से आ रहा है, तो थोड़ा सा देखो। पीपल दोज गाइज हु आर पार्ट ऑफ नो शुगर चैलेंज, वो लोग का तो इम्यूनिटी इतना टाइम में इतना तो बिल्टअप हो ही गया होगा, भले बीच में थोड़ा बहुत वो लोग ने चीटिंग वीटिंग किया हो शुगर के केस में, पर एक साइकोलॉजी है ना कि हम लोग ने फर्स्ट 21 डेज शुगर बैन किया, उसके बाद वीक में ओनली 2 डेज़ वी आर कंज्यूमिंग शुगर, ठीक है। तो उसमें अगर थोड़ा सा आपका चीटिंग चला, मान लो दीपावली के टाइम पे और दशहरा का टाइम पे सब ना, तो भी चलेगा, ठीक है। ओवरऑल इफ़ यू सी इन लास्ट 2 to 3 मंथ्स, जब से अक्टूबर नवंबर दिसंबर अभी आपका चल रहा है, सितंबर में हम लोगों ने स्टार्ट किया, पिछले 4 मंथ में जहाँ पे आपका मान लो 100 दिन है, इन 100 डेज द अमाउंट ऑफ शुगर दैट यू हैव कंज्यूम्ड विदाउट टेकिंग दिस चैलेंज एंड आफ्टर टेकिंग दिस चैलेंज द काइंड ऑफ शुगर लेवल ऑफ शुगर दैट यू हैव कंज्यूम्ड वो कम से कम 80% 90% घट गया होगा, ठीक है। सो ओनली 10% ऑफ शुगर यू हैव कंज्यूम्ड इन दिस मेनी टाइम पीरियड, वाई? बिकॉज यू गाइज आर टेकिंग नो शुगर चैलेंज। तो आप लोगों को एटलीस्ट ये कोविड से डरने का उतना ज़रूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि कोविड अगर आपको हो भी जाएगा ना, तो आपका इम्यूनिटी इतना स्ट्रांग है दैट यू विल बी एबल टू बाउंस बैक नेचुरली। आई एम नॉट गिविंग एनी ज्ञान व्यान और स्पिरिचुअल कि नहीं आपका वाइब्रेशन आई है और एंजल आके आपको गोदी में लेके पकड़ के बैठा देगा ना, फालतू का बात नहीं। Technically, you guys have cut down on your sugar levels. You are restricting on your sugar intake, which means that your immunity has been built up. Excess sugar in your body has been, drained out. And mentally also you are so much strong that कि आपको एक क्रेविंग होता है एक चीज़ का खाने का, पसंद है, और उसको आप अवॉइड कर रहे हो, कम खा रहे हो या नहीं खा रहे हो। तो उसकी वजह से जो है ना, कोविड ऐसा मैं ये नहीं बोलूँगा आपको होगा नहीं, ठीक है ना, कोई आपको कर्ण का जैसे कवच मिल गया, ऐसा नहीं है। होगा भी ना तो कुछ नहीं होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इवन इफ यू गाइज आर इन्फेक्टेड बाय कोविड, यू गाइज कैन बाउंस बैक वेरी वेल कंपेयर टू अदर गाइज जो कि अभी मस्त, ठीक है ना, शुगर इनटेक्स में बिजी हैं, ठीक है। सो and of lately I came to know that most of the people for taking this kind of challenges with their followers, they are charging money for this also, I saw someone, कि per month we are charging this much. Why? Because we are undergoing the challenge with our followers. I say यार हम लोग तो ये काम फ्री में करा रहे हैं, ठीक है। तो खैर जो भी हो, तो एन्जॉय करो अपना 2024 को। लॉन्ग वीकेंड है, क्रिसमस विसमस एन्जॉय करो, मस्त रहो, ठीक है। और जिनको फाइनेंशियल अबंडेंस पे काम करना है अपने लाइफ में, ठीक है ना, वो ऐसा नहीं है कि सबको घर में पैसे की तंगी है तभी फाइनेंशियल अबंडेंस पे सोचना चाहिए। फ्यूचर में किसी को अभी कोई तंगी नहीं है मान लो, ठीक है। एट प्रेजेंट यू आर, अरे करोड़ों रुपए बैंक में पड़ा है यार, क्या करेगा विजय सर का फाइनेंशियल अबंडेंस, छोड़ना यार, ज़रूरत ही नहीं है अपन को यार। अपन तो राजा है, महारानी है, मेरा बाप का तो जो है ना करोड़ों अरबों का प्रॉपर्टी है। तो एक मैं बात बता देता हूँ, ठीक है ना, अगर आपका तौर तरीका सही है तो आपका वो कंटिन्यू होता रहेगा, ठीक है। नहीं तो एक राजा को रोड में आने में और एक रोड वाले को राजा बनने में ना सिर्फ एक रात का अंतर होता है, ठीक है। इट टेक्स 1 नाइट टू ब्रिंग टू फॉल एन एम्पायर और फ्रॉम रैग्स टू रिचेस, ठीक है ना। तो आप लोग के पास है, ये कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है ना। आपके पास के कर्माज या आपका पेरेंट्स का हेरिटेज या आपके हस्बैंड का किसी चीज़ से भी हो सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील। बट इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू and maintain your financial abundance in your life, and if you want to actually having problem with the finance and incoming time, if you want to solve out those problem, then I guess ऐसा जो मॉड्यूल whatever I'll create, it will not be available anywhere in the internet, not in any books, ठीक है ना, and nowhere in YouTube, anywhere, because it is my own personal life experiences and practice for so many years I have been doing, है ना, and then I am
at a stage to share with you guys, right? तो आई लीव अप टू यू गाइज, ठीक है ना। हाँ, ये बात है कि आज आपके पास मान लो 50 करोड़ प्रॉपर्टी है और कल के डेट में आपके हाथ में मान लो 50 लाख आ जाता है ना, तो आपको दोबारा 50 करोड़ बनाने में बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं अरे अपने पास तो अंधा पैसा पहले से है, कौन करेगा ये सब चीज़, पर हो सकता है आप लोग लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा गलतियां कर रहा हो जो कि स्लोली स्लोली आपके लिए बाद में एक वैक्यूम का क्रिएट करेगा, तो वो भी जो है ना आपको देखना होगा, ठीक है। तो आई लीव अप टू यू गाइज योर जजमेंट एंड योर एनालिसिस, हाउ यू टेक दिस पॉडकास्ट सेशन, हाउ यू टेक दिस इंटीमेशन. If you guys find it useful, if you can find it somewhere fruitful to your life, somewhere as an additional learning experience which you will not find anywhere in the internet. आप 1000 वीडियोस देख लो, आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। या मिलेगा भी तो आप एक्सपेरिमेंट करते रहो, आपको पता नहीं होगा कि ये सही है या गलत है, आप करते रहो। कई बार गलत चीज़ें भी इंटरनेट में छाप दिया जाता है एंड पीपल बाई इट, ठीक है। बट ऑल दोज थिंग्स विच are actually tested, proven and started to bring the results in my own life. So that entire thing I'll be scheduling step by step in a classroom format. So सीखना है, सीखने का मन है, सीख लो, काम आएगा लाइफ में डेफिनेटली। ज्ञान है, ठीक है ना, नॉलेज है, एंड डू लेट मी नो, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आई बी वर्किंग ऑन द मॉड्यूल। एल्स प्रैक्टिकली इफ़ आई टेल यू, क्योंकि इतना टाइम मैं बिजनेस में अपना रिजल्ट्स के लिए वेट कर रहा था और अब मेरे को दिखने लगा है ना, देन टेक्निकली आई शुड बी स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन माई बिजनेस एंड नॉट विथ यू गाइज एक्चुअली, ठीक है, टेक्निकली व्हाट आई मीन। पर वो जो थोड़ा सा एक जो अच्छा आदमी का दिल होता है ना, जो पहले था मेरे पास, अभी मैं नहीं बोलता हूँ मेरे पास वो अच्छा आदमी का दिल अब बच गया है, क्योंकि आप लोगों ने चाकू भोंक भोंक के उसको तो मार दिया है, ठीक है। तो जो थोड़ा बहुत जो 5-6% जो अच्छा आदमी का दिल बचा है, वो बोलता है कि नहीं सिखा दो, किसी का लाइफ में काम आ सकता है, बस उसके लिए। नहीं तो टेक्निकली अभी के टाइम में तो मेरे को आप लोगों के लिए शट डाउन करके चैनल वैनल कोई बंद करके बैठ जाना चाहिए, ठीक है। बिकॉज द मोर आई कंसनट्रेट ऑन माई बिजनेस, द मोर आई विल बी एक्सप्लोरिंग मोर एंड मोर, एडिंग ऑन मोर एंड मोर वेल्थ टू माई, ठीक है ना, अपना बैलेंस, अपना अबंडेंस में, ठीक है। वाई शुड आई स्पेंडिंग आवर्स विथ यू गाइज, कोई मतलब ही नहीं बनता। तो वो 5% का अच्छा आदमी का जो है ना, आप लोग उसकी वजह से है। नहीं तो ये मत सोचो कि सर जब खुद ही इतना ज़्यादा अबंडेंस का बात कर रहे हैं तो हमको सिखाने की क्या ज़रूरत है। एग्जैक्टली आप लोगों को सिखाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, और मेरे को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फील नहीं होता कि मैं आप लोग को सिखाऊँ कि इसमें आपका क्या योगदान है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। बंदा खुद मेहनत किया, खुद एक्सपेरिमेंट किया, खुद रात भर जगा है, खुद सब कुछ किया है, तब जाके उसको कुछ मिला है, ठीक है। तो उसमें आप लोग का कोई हक बनता ही नहीं है प्रैक्टिकली, ठीक है। फिर भी मैं कर रहा हूँ तो उसको ऑनर करने का काम आपका है, और आप में से जो भी लोग आएगा उसको रिजेक्ट करने का काम मेरा होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सबको आएगा सर अपने पास पैसा है अपन देगा एंड यू जस्ट इनरोल मी इन योर सेशन, इट्स नॉट लाइक दैट, थिंग्स डोंट गो वर्क लाइक दैट। आई विल बी वेरी सेलेक्टिव एंड चूजी ऑन who will participate in my financial abundance class and who will be shown the door, ठीक है। तो ये चीज़ मैं पहले ही बता देता हूँ, बाद में ये मत बुरा मानना कि सर ने मेरे को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है ना। आप नहीं थे एलिजिबल इसीलिए आपको रिजेक्ट कर दिया, सीधी सी बात। आई विल नॉट गिव एनी एक्सप्लेनेशन ऑल्सो, ठीक है। नो मीन्स नो, एंड ओनली दोज विल बी फिल्टर्ड आउट, ओनली उनको ही मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, एंड जो भी क्लास में आएगा एटलीस्ट ये चीज़ आप लोग करना कि स्टूडेंट माइंडसेट से आना, पेन एंड पेपर नोटबुक वगैरह लेके, और सीखने के माइंडसेट से आना, ठीक है ना। हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना हेल्दी डिस्कशन हो, जितना अच्छा हो, ठीक है ना, जितना लाइवली हो, उस हिसाब से आपको सारा चीज़ जो है ना, मैं आपको जो डिकोड किया एवरीथिंग आई विल टीच यू गाइस इन एंड आउट, ठीक है। Though didn't take up the no sugar challenge, but I benefited when you told to follow veg on Pitru Paksh. हाँ definitely, ठीक है। Anything that we have shared on our platform since the beginning of our channel is actually putting you guys on the track of your financial abundance, or creating a balance in your life some way or the other, little bit or some way or the other. And guys have felt also the changes, those guys who are associated with us,
and those guys take our podcast sessions, our guidance seriously, ठीक है ना. Those guys have changed, have felt the change in their life themselves. Okay, हारे हुए लोग जो पूरा अपना मोटिवेशन खो चुके थे, those guys have also bounced back in their life. ठीक है, तो इट ऑल डिपेंड्स. ठीक है ना, आप लोगों को मिल रहा है, अब मेरे टच में हो एटलीस्ट, तो मेरे से जो बेस्ट मिल सकता है ना, वो सारा चीज़ मैं शेयर करने के लिए तैयार हूँ. बट पहले से थोड़ा सा मैं कंजर्वेटिव हो गया हूँ, बस इतना ही फ़र्क है. पहले ओपन आर्म से सबको वेलकम करता था, ठीक है ना. अभी वैसा नहीं है, बिकॉज आई बिकम वेरी मच सेलेक्टिव दैट हु गेट्स टू इंटरेक्ट विथ मी एंड हु डजंट गेट टू इंटरेक्ट विथ मी. एंड फाइनेंशियल अबंडेंस के साथ साथ द सेम थिंग विल हैपन विथ सेशंस ऑल्सो. पहले मैं सेशंस का सेलेक्टिवली थोड़ा सा तब भी था, पर ज़्यादातर लोगों को इग्नोर मैंने कभी नहीं किया है, अलाउ किया. बट नाउ इवन फॉर रेगुलर सेशन ऑल्सो एनीबडी वांट्स टू टेक, आई विल बी वेरी सेलेक्टिव यार. सबको नहीं मिलेगा टाइम यार, ठीक है, सबको नहीं मिलेगा टाइम. आपका अपना प्रॉब्लम है, जाइए अम्मा जी के पास, किसी के पास भी जाइए, अपना टाइम स्पेंड कीजिए, पैसा खर्च कीजिए, ठीक है ना. 30-30 मिनट का अपना रिचार्ज करवाते रहिए, पैसा भरते रहिए, ठीक है ना, और मज़ा लेता रहिए, ठीक है. पर विजय सर आपको एंटरटेन नहीं करेंगे, ठीक है. सो दोज ऑन आई विल एंटरटेन ओनली दोज गाइज with whom I see a respect for me, for our channel on their eyes, you know, those guys who seems to be genuine, and those guys, you know, who feel genuine to us. ऐसा नहीं कि भेड़ बकरी है वो सबको मैं स्पिरिचुअलिटी के नाम पे, सर आई एम स्पिरिचुअल, ओम का मैंने डीपी लगा के रख दिया है, मेरा डिवाइन मैस्कुलिन जो है ना मैंने आइडेंटिफाई कर दिया, ठीक है यार. वो सब चीज़ चाय समोसा पापड़ी चाट आप अपना अम्मा जी के चैनल में जाके शेयर करो. आई एम घंटा फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को, आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस क्रैप्स, ठीक है ना. इफ़ आई फाइंड यू जेन्युइन आई विल लेट यू इन. इफ आई डोंट फाइंड इट जेन्युइन आई एम least bothered about whether you are a twin flame or you are a sadhak or you are a sadhvi or you are a falana dimkana or you are from a brahmin family or whatsoever, ठीक है ना. आप बोलो कि I am from a royal family, I give a shit about it. I don't it doesn't matter to me at all, ठीक है ना. So selectiveness criteria, I have been more conservative. Now I'll become more conservative compared to before, ठीक है. So I don't want to drain myself out dealing with that's the reason why I'm again, you know, putting this on air right now, that anybody who are interested for session, please inquire and take my time, okay. Only when you are destined to book the session within 3 days. Don't make it a time pass that, sir, I want a session, and when I happen to give the time that okay, this weekend I am, you know, able to allocate 1 hour 2 hour for your session, you do the booking and you start, you know, other thing, or you start to ignore the messages, then in that case, if you want to join the session, it will be an addition of 15% as a penalty of your inability to take the decision on time, ठीक है, and killing my time, ठीक है. So whatever the fees will be there, that will be added up by 15% if you inquire, do everything for the session, but finally when I allocate the time, you are not available there, or you are not booked the session by within 3 days of your inquiry also, then be ready to shell out 15% to whatever session fees was told to you, okay. Else don't come to me at all, ठीक है. I'm not interested actually to deal with those guys who are not serious for themselves. ऑब्वियसली यार, आज मेरे को भूख लगा है, मेरे को किसी चीज़ से प्रॉब्लम है, ठीक है, और मैं 3 दिन तक भी विद इन 72 आवर्स ऑल्सो आई एम नॉट एबल टू डिसाइड कि मेरे को सेशन करना है या नहीं करना है. इट मीन्स दैट आपको वो प्रॉब्लम को कंटिन्यू करना है तो करो ना, कंटिन्यू भाई. फिर मैं क्यों चाहिए आपको, करते रहो, एंजॉय करो अपना प्रॉब्लम को, ठीक है ना. क्योंकि मैंने खुद में भी देखा है, मेरे को कुछ चीज़ चाहिए और पसंद है, ठीक है, और मैं जा रहा हूँ ना, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं उसको पोस्टपोन कर दूं कि नहीं यार अगले महीना मैं जाऊंगा, अगले नहीं. चाहिए तो चाहिए, उसी वक्त होता है, ठीक है ना. ख़ास तौर पे चीज़ें रिलेटेड टू योर प्रॉब्लम्स, चीज़ें रिलेटेड टू योर इलनेस, चीज़ें रिलेटेड टू योर फैमिली इश्यूज़, रिलेशनशिप्स इश्यूज़, ठीक है ना. इफ़ यू गाइज आर स्टेट ऑफ माइंड टू प्रोलॉन्ग, ठीक है ना, स्किप करने का मन है तो इंक्वायरी मत करो ना. वाई यू आर किलिंग माई टाइम, सर आई एम हैविंग दिस इशू, विल यू गिव मी सम टाइम, व्हाट इज़ द सेशन फीस, एवरीथिंग, ठीक है ना. But finally, eventually, you don't join. You don't appear on the day of session. ठीक है.
It makes no sense at all, and it's a complete disgrace on your part that you're not acting professionally, at least. Okay, not even humanly, I would say, that आप सब कुछ करते हो, but and it's not, I'm not pinpointing any one or two of you, it's a list of people. Many people have done this. I want to take this session, sir, I want to do this, I want to do this. Okay, fine, I am taking out time for you at this time of the month or this time of the week. Please be available on that day. I am the one who is keep on sending messages that, ma'am, are you available there today, afternoon, I have scheduled time for you, or tomorrow I'll be there. There is no response. ठीक है, तो ऑल दिस थिंग्स यू ट्राई विथ अदर गाइज यार. ठीक है ना, आपके लाइफ में बहुत सारे लोग होंगे, उनसे ट्राई करो. आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस क्रैप थिंग्स दैट आपको मूड हुआ तो इंक्वायरी कर लिया, आपको मूड हुआ तो कैंसिल आउट कर लिया, आपको मूड हुआ तो ये कर लिया, या पता नहीं आसमान से कौन सा एक नया मजबूरी आपने पैदा कर दिया कि सर एक मजबूरी है हमको. ठीक है, तो मजबूरी पहले से आपको देखना चाहिए सब कुछ. ठीक है, सो बी प्रोफेशनल, बी कैलकुलेटिव, बी बिकॉज टाइम इज़ ऑल्सो वेल्थ. ठीक है, लेट मी आज वेल्थ के ऊपर इतना बात किया. टाइम इज़ ऑल्सो वेल्थ. इफ़ यू आर स्पेंडिंग योर टाइम properly, that means you are spending your wealth properly also. And if you are not honoring someone else time, ठीक है, then you are not honoring someone else wealth as well. That person is willing to shell out his time for you so that you come out of some problem or you learn something new in your life, and you don't value that thing. ठीक है, तो you don't deserve that thing basically. ठीक है, so खैर जो भी हो, this recording will be available to you on Instagram and YouTube. You guys can go and listen and make a judgment out of yourself. So by the time I have this motivation and I see the participation well, I will design the module. And if I don't see it, I am all good without teaching you guys the secrets of financial abundance also. Okay, and I'll get better, I'll get more time to take out for my business and concentrate more on myself rather than spending time on else. Okay, so I leave up to you guys. Okay, and enjoy your day, enjoy your long weekend. Merry Christmas to all of you, and happy New Year in advance to all of you. Okay, enjoy, God bless, and be happy, be wealthy, and aspire to become rich in life. Okay, chalo. God bless. Bye bye. Take care.